हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन के बारे में, स्टीव जॉब्स। वो एप्पल कंपनी के को-फाउंडर थे एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनोवेटर्स इन द वर्ल्ड। His life story teaches us about creativity, hard work, and never giving up. So, let's listen carefully and get inspired. Steve Jobs was an American entrepreneur and inventor. स्टीव जॉब्स एक अमेरिकी उद्यमी और आविष्कारक थे। His passion for perfection and intense drive revolutionized 6 industries: personal computers, animated movies, music, phones, tablets, and digital publishing. पूर्णता के प्रति उनका जुनून और तीव्र प्रयास ने 6 उद्योगों में क्रांति ला दी: पर्सनल कंप्यूटर, एनिमेटेड फिल्में, संगीत, फोन, टैबलेट और डिजिटल प्रकाशन। He founded the Apple Company in his parents' garage. उन्होंने एप्पल कंपनी की स्थापना अपने माता-पिता के गैराज में की। Apple is known for products like personal computers, laptops, iPhones and iPads. Apple अपने उत्पादों के लिए जाना जाता है जैसे पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, आईफोन और iPad. Let's read more about his life in this lesson. आइए इस पाठ में उनके जीवन के बारे में और पढ़ते हैं। Rohan was very excited as he was going to visit an exhibition on electronic products with his father. रोहन बहुत उत्साहित था क्योंकि वह अपने पिता के साथ इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की प्रदर्शनी देखने जा रहा था। As they entered the exhibition hall, Rohan's attention was drawn to an image of a person displayed on a giant electronic screen. जैसे ही वे प्रदर्शनी हॉल में पहुंचे, रोहन का ध्यान एक विशाल इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर प्रदर्शित एक व्यक्ति की छवि पर गया। He asked his father whose image it was. उसने अपने पिता से पूछा कि यह किसकी तस्वीर है। Father told him that it was the image of Steve Jobs, one of the founders of the Apple Company. पिता ने उसे बताया कि यह स्टीव जॉब्स की तस्वीर है, जो एप्पल कंपनी के संस्थापकों में से एक हैं। Rohan asked his father, "Please tell me about Steve Jobs and how he became such a successful person." रोहन ने अपने पिता से पूछा, कृपया मुझे स्टीव जॉब्स के बारे में बताएं और वह इतने सफल कैसे बने। Father then told him about Steve Jobs. पिता ने फिर उसे स्टीव जॉब्स के बारे में बताया। Steve Jobs was born on 24 February 1955 in San Francisco, USA. स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में हुआ था। Who knew that one day this child would bring a revolution in the field of electronics? किसे पता था कि एक दिन ये बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में क्रांति लाएगा। At school, Steve Jobs and Steve Wozniak became friends. स्कूल में, स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक दोस्त बने। They later went on to found the famous Apple Company in 1976. बाद में उन्होंने 1976 में मशहूर एप्पल कंपनी की स्थापना की। Steve Jobs attended Reed College in 1972 before dropping out in the same year. स्टीव जॉब्स ने 1972 में रीड कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उसी साल बीच में पढ़ाई छोड़ दी। Although Steve Jobs was a college dropout, yet his greatness can be gauged from the fact that Stanford University invited him as a special guest to give the commencement speech. हालांकि स्टीव जॉब्स कॉलेज ड्रॉप आउट थे, उनकी महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें विशेष अतिथि के रूप में समापन भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। Here are some excerpts from the 2005 commencement speech given by Steve Jobs which sum up his life and principles. यहाँ स्टीव जॉब्स द्वारा 2005 में दिए गए समापन भाषण के कुछ अंश हैं, जो उनके जीवन और सिद्धांतों का सार बताते हैं। Thank you. धन्यवाद। I am honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. मुझे सम्मानित महसूस हो रहा है कि मैं आज आप सभी के साथ हूँ, दुनिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से एक के आपके दीक्षांत समारोह में। Truth be told,
I never graduated from college. सच कहूँ तो मैंने कभी कॉलेज से स्नातक नहीं किया. And this is the closest I've ever gotten to a college graduation. और यह कॉलेज ग्रेजुएशन के सबसे करीब है जहां तक मैं कभी पहुंचा हूं. Today I want to tell you 3 stories from my life. आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूं. That's it. No big deal. Just 3 stories. बस इतना ही. कोई बड़ी बात नहीं. सिर्फ 3 कहानियां. Connecting the dots. The first story is about connecting the dots. पहली कहानी बिंदुओं को जोड़ने के बारे में है. I dropped out of Reed College after the first 6 months. मैंने रीड कॉलेज के पहले 6 महीने पूरे करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी. So why did I drop out? तो मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ी? After 6 months, I couldn't see the value in it. 6 महीने बाद मुझे इसका कोई मतलब समझ नहीं आया. I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ और यह भी नहीं पता था कि कॉलेज कैसे मेरी मदद करेगा इसे समझने में. And here I was spending all of the money my parents had saved their entire life. और यहाँ मैं अपने माता पिता की पूरी जीवन भर की बचत खर्च कर रहा था. So I decided to drop out and trust that it would all work out. तो मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और भरोसा किया कि सब ठीक हो जाएगा. It was pretty scary at the time, but looking back it was one of the best decisions I ever made. उस समय ये काफी डरावना था, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर यह मेरे जीवन के सबसे अच्छे फैसलों में से एक था. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me, and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. जैसे ही मैंने पढ़ाई छोड़ी, मैं उन जरूरी कक्षाओं को छोड़ सकता था जिनमें मेरी रुचि नहीं थी, और उन कक्षाओं में जाना शुरू कर सकता था जो मुझे अधिक रोचक लगती थी. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. और अपनी जिज्ञासा और अंतर्ज्ञान का पालन करते हुए जिन चीजों में मैं शामिल हुआ, वे बाद में अनमोल साबित हुई. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. उस समय रीड कॉलेज शायद देश में सबसे अच्छी सुलेख कैलीग्राफी की शिक्षा प्रदान करता था. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. पूरे कैंपस में हर पोस्टर, हर दराज पर लगा लेबल सुंदर हाथों से लिखी हुई कैलीग्राफी में था. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और सामान्य कक्षाएं लेने की जरूरत नहीं थी, मैंने ये सीखने के लिए एक कैलीग्राफी क्लास लेने का निर्णय लिया. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइपफेस के बारे में, अलग-अलग अक्षरों के संयोजनों के बीच की जगह को बदलने के बारे में, और अच्छी टाइपोग्राफी को महान बनाने वाले तत्वों के बारे में सीखा. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. ये सुंदर, ऐतिहासिक और कलात्मक रूप से इतना सूक्ष्म था जिसे विज्ञान पकड़ नहीं सकता, और मुझे ये बेहद रोचक लगा. None of this had even a hope of any practical application in my life. इनमें से किसी का भी मेरे जीवन में किसी व्यावहारिक उपयोग की आशा नहीं थी. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. लेकिन 10 साल बाद, जब हम पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे, तो ये सब मुझे याद आ गया. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. और हमने इसे मैक में शामिल कर दिया.
ये सुंदर टाइपोग्राफी वाला पहला कंप्यूटर था। If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. अगर मैंने कॉलेज में वही कोर्स कभी न किया होता, तो मैक में कभी भी कई तरह के टाइपफेस या अनुपातिक स्पेस वाले फॉन्ट न होते। And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. और क्योंकि विंडोज ने सिर्फ मैक की नकल की, संभवतः किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये न होते। If I had never dropped out, I would have never dropped in on this calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. अगर मैंने पढ़ाई न छोड़ी होती, तो मैं इस कैलीग्राफी क्लास में कभी शामिल न होता, और पर्सनल कंप्यूटर्स में वह अद्भुत टाइपोग्राफी न होती जो आज है। Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college. बेशक, कॉलेज में रहते हुए आगे देखते हुए बिंदुओं को जोड़ना असंभव था। But it was very, very clear looking backwards 10 years later. लेकिन 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखने पर यह बहुत स्पष्ट था। Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path, and that will make all the difference. क्योंकि यह विश्वास कि आगे चलकर ये बिंदु जुड़ेंगे, आपको अपना दिल मानने का आत्मविश्वास देगा, भले ही यह आपको जानी पहचानी राह से दूर ले जाए, और यही सबसे बड़ा फर्क पैदा करेगा। My second story is about love and loss. मेरी दूसरी कहानी प्यार और खोने के बारे में है। I was lucky I found what I loved to do early in life. मैं भाग्यशाली था, मैंने जीवन में जल्दी ही वो पा लिया जो मुझे करना पसंद था। Was and I started Apple in my parents' garage when I was 20. Was और मैंने 20 साल की उम्र में अपने माता-पिता के गैराज में एप्पल की शुरुआत की। We worked hard, and in 10 years Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. हमने कड़ी मेहनत की, और 10 साल में एप्पल हमारे गैराज में सिर्फ 2 लोगों से बढ़कर 4,000 से अधिक कर्मचारियों वाली $2 अरब की कंपनी बन गई। We had just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I had just turned 30. हमने अभी अपनी सबसे बेहतरीन रचना, मैकिंटोश, 1 साल पहले लॉन्च की थी, और मेरी उम्र अभी 30 हुई थी। And then I got fired. और फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। How can you get fired from a company you started? आपको अपनी ही शुरू की हुई कंपनी से कैसे निकाला जा सकता है? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me, and for the first year or so, things went well. जैसे जैसे एप्पल बढ़ी, हमने किसी को नियुक्त किया जिसे मैं बहुत प्रतिभाशाली समझता था, ताकि वह मेरे साथ कंपनी चलाए, और पहले साल या उसके आसपास सब ठीक चला। But then our visions of the future began to diverge and eventually we had a falling out. लेकिन फिर भविष्य के बारे में हमारे विचार अलग होने लगे और अंततः हमारा झगड़ा हो गया। When we did, our board of directors sided with him. जब ऐसा हुआ, तो हमारे निदेशक मंडल ने उसका साथ दिया। So at 30, I was out. And very publicly out. तो 30 की उम्र में, मैं बाहर था, और वह भी सबके सामने। What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. मेरी पूरी वयस्क जिंदगी का केंद्र खत्म हो गया, और यह बेहद दुखद था। I really didn't know what to do for a few months. कुछ महीनों तक मुझे सच में समझ नहीं आया कि क्या करूं। I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. मुझे लगा कि मैंने पिछली पीढ़ी के उद्यमियों को निराश कर दिया है, कि जैसे ही जिम्मेदारी मुझे सौंपी जा रही थी, मैंने उसे गिरा दिया। But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did.
लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा मुझे अब भी वह काम पसंद था जो मैं करता था। The turn of events at Apple had not changed that one bit. एप्पल में हुए घटनाक्रम ने इसे जरा भी नहीं बदला था। I had been rejected, but I was still in love. मुझे अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन मैं अब भी उस काम से प्यार करता था। And so I decided to start over. और इसलिए मैंने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. उस समय मैंने यह नहीं समझा, लेकिन बाद में ये साबित हुआ कि एप्पल से निकाला जाना मेरे साथ हुई सबसे अच्छी बात थी। The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. सफल होने का बोझ फिर से एक शुरुआती होने की हल्कापन में बदल गया, जिसमें हर चीज के बारे में कम निश्चितता थी। It freed me to enter one of the most creative periods of my life. इसने मुझे मेरे जीवन के सबसे रचनात्मक दौर में प्रवेश करने की स्वतंत्रता दी। During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. अगले 5 सालों में मैंने नेक्स्ट नाम की एक कंपनी शुरू की, एक और कंपनी पिक्सार शुरू की और एक अद्भुत महिला से प्यार कर बैठा, जो बाद में मेरी पत्नी बनी। Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. Pixar ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म, टॉय स्टोरी, बनाई और आज ये दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। In a remarkable turn of events, Apple bought Next. I returned to Apple and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. एक अद्भुत घटनाक्रम में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया। मैं एप्पल में वापस आ गया और नेक्स्ट में विकसित की गई तकनीक आज एप्पल के वर्तमान पुनर्जागरण के केंद्र में है। And Lauren and I have a wonderful family together. और लॉरेन और मेरे पास एक अद्भुत परिवार है। I am pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. मुझे पूरा यकीन है कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो ये सब कभी नहीं होता। It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. ये दवाई का स्वाद बहुत बुरा था, लेकिन मुझे लगता है मरीज को इसकी जरूरत थी। Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. कभी कभी जिंदगी आपको एक ईंट से सिर पर मारती है। विश्वास मत खोना। I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. मुझे पूरा यकीन है कि मुझे आगे बढ़ाए रखने वाली एक ही चीज थी, मैं जो करता था, उससे प्यार करता था। You've got to find what you love. And that is as true for work as it is for your lovers. आपको वही काम ढूंढना होगा जिससे आपको प्यार है, और यह बात काम के लिए उतनी ही सच है जितनी आपके प्रियजनों के लिए। Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा भरने वाला है, और सच्ची संतुष्टि पाने का एक ही तरीका है, वही करना जो आप मानते हैं कि बेहतरीन है। And the only way to do great work is to love what you do. और बेहतरीन काम करने का एकमात्र तरीका है, जो आप करते हैं उससे प्यार करना। If you haven't found it yet, keep looking. And don't settle. अगर आपने अभी तक उसे नहीं पाया है, तो खोजते रहें। और समझौता मत करें। As with all matters of the heart, you'll know when you find it. दिल से जुड़ी हर चीज की तरह, जब आप उसे पाएंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा। Death, मृत्यु. My third story is about death. मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." जब मैं 17 साल का था, मैंने एक कथन पढ़ा जो कुछ इस तरह था,
अगर आप हर दिन ऐसे जिए जैसे यह आपका आखिरी दिन हो, तो एक दिन आप निश्चित रूप से सही होंगे। It made an impression on me. इसका मुझ पर गहरा असर पड़ा। About a year ago I was diagnosed with cancer. लगभग 1 साल पहले मुझे कैंसर होने का पता चला। The scan clearly showed a tumor on my pancreas. जांच में साफ दिखा कि मेरे अग्न्याशय में एक ट्यूमर है। The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. डॉक्टरों ने मुझे बताया कि यह लगभग निश्चित रूप से कैंसर का एक ऐसा प्रकार है जिसका इलाज नहीं है, और मैं 3 से 6 महीने से अधिक जीवित रहने की उम्मीद न करूं। Remember that time is limited, so don't waste it living someone else's life. याद रखें कि समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करें। Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. डॉगमा में मत फंसिए, जिसका मतलब है दूसरों की सोच के परिणामों के साथ जीना। Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. दूसरों की राय का शोर आपकी अपनी अंदरूनी आवाज को दबाने मत दें। And most important, have the courage to follow your heart and intuition. और सबसे जरूरी बात, अपने दिल और अंतर ज्ञान का पालन करने का साहस रखें। They somehow already know what you truly want to become. वे किसी न किसी तरह पहले से जानते हैं कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। Everything else is secondary. बाकी सब चीजें द्वितीयक हैं। So friends, this was the amazing journey of Steve Jobs, एक ऐसे इंसान की जिसने अपने विचारों से दुनिया बदल दी। उनकी बातें हमें याद दिलाती हैं कि जो हम करते हैं उससे प्यार करें, अपने सपनों का पीछा करें और कभी उम्मीद न खोएं। सीखते रहिए, सपने देखते रहिए, और एक दिन आप ही बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें स्टडी विद पीहू को, ताकि आपको ऐसे और मज़ेदार और सीख से भरे वीडियो मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए सवाल जवाब के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।